Hello everyone. Welcome to the official YouTube channel of Sharma Tuitions, where we aim conceptual knowledge along with deeper understanding for our students. I am Rohit Sharma. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के अगले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. In this chapter, we are going to cover the following topics: introduction, allotropes of carbon, physical properties of carbon, carbon compounds and its types, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, and soaps and detergents. अब इस चैप्टर का नाम सुनते ही सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही उठ रहा होगा कि कार्बन क्या है. What is carbon? This is a periodic table in which we can see all the elements that have been discovered till date. There are 118 elements in a periodic table, but carbon has its own unique importance. हमारे periodic table में 118 elements हैं, लेकिन कार्बन इन सब में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है. अगर हम क्लास 10th की ही बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम से एक पूरा अलग चैप्टर है. हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं, ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड्स क्यों नहीं, यानी कि कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी के एलिमेंट से अलग करती है. Why? Carbon is considered to be most versatile element in periodic table. Carbon periodic table का सबसे versatile element माना गया है. Now, what do we mean by versatile in terms of elements? Elements के अंदर versatile का मतलब ये है कि वो organic as well as inorganic compounds form कर सकता है. Organic compounds मतलब वो जो कि naturally exist करते हैं, whereas inorganic compounds वो होते हैं which are man-made. Carbon is an element, a non-metal basically. It is denoted by capital C and it is derived from the word carbo, which is a Latin word that means coal. अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें यानी कि KLMN इन शेल्स में इसको बांटने की कोशिश करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए तो 4 की जगह बची. Hence, valency of carbon is 4. Atomic mass and molar mass of carbon is 12 approximately. In fact, carbon is one of the most abundant element existing. Carbon is the 5th most abundant element in the universe and 15th most abundant element in Earth's crust. हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जैसे कि कार्बोनेट्स, coal and petroleum. Carbon is also present in our atmosphere in form of carbon dioxide. The percentage of carbon in atmosphere is 0.003%. अब कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? Every element that is made up of carbon atom is known as carbon compound. हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे हम ना जाने ऐसे कितने कार्बन कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when we wake up, what is the first thing we do? Brushing our teeth, right? तो हमारा जो टूथब्रश है एंड टूथपेस्ट है दैट इज अ कार्बन कंपाउंड. उसके बाद वी टेक शावर, तो जो हमारा सोप है एंड शैम्पू है दैट आर ऑल्सो कार्बन कंपाउंड्स. देन वी हैव समथिंग टू ईट, और ये खाना किससे बनता है? हमारे किचन में प्रेजेंट गैस सिलेंडर से. तो जो गैस सिलेंडर है, ये जो फ्यूल है, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड. And when we travel from one place to another place, the fuel that is required in our vehicles या किसी भी मशीन के अंदर, that is also a carbon compound. Basically, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कार्बन वन वे और दी अदर प्रेजेंट है. और ये सारे कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं उसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. नाउ, What makes carbon different from other elements? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो कार्बन को बाकी के एलिमेंट से अलग बनाती हैं? There are 118 elements in a periodic table, but carbon has its own unique importance.
हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन इन सब में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है। कार्बन के अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो उसे बाकी के एलिमेंट्स से अलग करती है। Why? Carbon is considered to be most versatile element in periodic table. कार्बन पीरियोडिक टेबल का सबसे वर्सेटाइल एलिमेंट माना गया है। नाउ अब कार्बन की वर्सेटिलिटी के पीछे कारण क्या है? हाउ कैन वी से दैट कार्बन इज द मोस्ट यूनिक एंड वर्सेटाइल एलिमेंट? Properties of carbon. There are several properties in carbon that makes it different from other elements. ये properties जो हैं ये कार्बन को और ज़्यादा powerful बनाती हैं. So we can also refer to these properties as superpowers of carbon. Some of the superpowers of carbon are covalent bond, tetravalent, catenation, polymerization and isomerism. Covalent bonds. Now what do we mean by the word covalent? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट कर दें दो हिस्सों में तो ये को और वैलेंट दो अलग अलग शब्दों को मिला के बनाए. को दैट मीन्स टुगेदर एंड वैलेंट दैट मीन्स वैलेंसी. Now what is the concept of covalent bonds? Every element struggles to settle down by attaining noble gas configuration. अब जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल स्ट्रगल करता है खुद को सेटल करने के लिए, ये एलिमेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं. लेकिन ये एलिमेंट्स खुद को सेटल्ड कब कंसिडर करते हैं? जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं. Now what do we mean by noble gas configuration? When there is no slot left to fill in electrons. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर 4 अलग अलग शेल्स होती हैं और उनके अंदर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं. अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का स्लॉट पूरे तरीके से भर जाता है, then it is considered to be noble gas configuration. अब कुछ एलिमेंट्स लकीली ऐसे होते हैं जिनके ऑलरेडी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है. फॉर एग्जांपल हीलियम विद 2 के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और वो ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर है. और नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 आ गए के शेल में और एल आ गए, एल शेल में आ गए 8, तो वो भी एक नोबल गैस है. तो कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी इस चीज को लेके चलते हैं और कुछ एलिमेंट्स को यहां तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ता है. नाउ हाउ कैन एन एलिमेंट अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दो तरीकों से पॉसिबल है. उसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर तो वो एल शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे तो नोबल गैस बन सकता है, या अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से ऐड कर दे तो वो एक नोबल गैस बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ कार्बन एटम with electronic configuration of 2 and 4 which leaves it with a valency of 4. कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी वो किस तरीके से पूरी कर सकता है? या तो वो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है. अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, 6 minus 4 that is 2 and number of protons will be 6. And if it accepts 4 electrons, then number of electrons will be 10 and number of protons will be 6. अब दोनों situations कार्बन के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है then protons are more than electrons, that leaves carbon with a positive charge. And अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी 6, दैट लीव्स इट विद अ नेगेटिव चार्ज. अब किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बराबर होना बहुत जरूरी होता है. अगर इस सिचुएशन में गैप आता है तो वो एटम सरवाइव नहीं कर पाता. सो दैट्स व्हाई कार्बन ना तो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ना एक्सेप्ट कर सकता है. देन व्हाट इज कार्बन लेफ्ट विद? कार्बन क्या करता है? सरवाइव करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है. अब कार्बन ये कैसे करता है? या तो अपने ही 4 एटम्स के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in order to attain noble gas configuration is known as covalent bonding. There are 3 types of covalent bonds: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Single covalent bond, when one pair of electron is shared between the atoms, it is known as single covalent bond. For example, chlorine molecule.
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात की जाए तो K शेल में 2, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वैलेंसी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 1। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को ना तो क्लोरीन एक्सेप्ट करता है ना डोनेट करता है, बट इट फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड अलोंग विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इटसेल्फ। Double covalent bond. When two pair of electrons are shared between atoms, it is known as double covalent bond. For example, oxygen atom when combined with another oxygen atom, such bonding is known as double covalent bond. अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर किया जाए तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, which leaves it with valency of 2. अब एक ऑक्सीजन एटम जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स की जो वैलेंसी है वो आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हेन 3 valence electrons of each element are combined with each other, it is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with atomic number of 7, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब बची हुई रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, which is known as triple covalent bond. मोस्ट कॉमनली अवेलेबल कार्बन कंपाउंड इज मीथेन, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर CH4 होता है। अब ये किस तरीके से बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स, व्हेन टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इट इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के पूरी करता है कुछ इस तरीके से। नाउ द बॉन्ड दैट यू कैन क्लियरली सी इज मेड अप ऑफ 2 electrons that are shared with each other from each atom respectively. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, that is known as triple covalent bond. For example, nitrogen with an atomic number of 14, 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होने के कारण अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के दोनों एटम्स आपस में शेयर कर लेते हैं। तो यानी कि कार्बन के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं, बट द डिफरेंस इज कि कार्बन ना सिर्फ खुद के साथ बट दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट शब्द का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है 4 एंड वैलेंट का मतलब वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फिल इट्स आउटरमोस्ट शेल, ताकि कार्बन नोबल गैस कन्फिगरेशन पा सके। विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 and 4, which leaves it with a valency of 4. If it carries negative charge, then it is known as anion, and if it carries positive charge, then it is known as cation. अब बेसिकली ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ही आपस में डिसाइड करता है कि कार्बन का कंपाउंड किस तरीके से बनेगा। अगर तो नेगेटिव चार्ज को एक फेलो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन कंपाउंड मिल जाता है तो ये आपस में बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्बन सीक्स एनी अदर एलिमेंट जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना सके। Most commonly found carbon compound is CH4 methane. Reason behind it is कार्बन को 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है वो चारों एंड्स पे अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से। So this is the molecular structure of CH4 methane. तो यानी कि कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी है, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, वो इस तरीके से पूरी कर दी जाती है बाय हाइड्रोजन। दैट इज द रीजन कि हाइड्रोकार्बन्स वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कैटिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स
branches and closed structures is known as catenation. अपने खुद के एटम्स के साथ बॉन्डिंग करके बड़े चेन्स में, ब्रांचेस में या क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स में जब एलिमेंट्स बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज नोन एज कैटिनेशन. अब कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कॉमनली पोजेस होती है. कार्बन ना सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स के साथ बट खुद के साथ भी लॉन्ग चेन्स में बॉन्ड फॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एज लॉन्ग चेन. अगर हम बात करें, दिस इज द ब्रांच्ड चेन, यानी कि इसमें कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच जैसा है. एंड दिस विल बी द साइक्लिक रिंग्स, यानी कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर. Polymerization, the process in which monomers are small compounds of carbon, can be attached to form a long chained carbon compound. It is known as polymerization. यानी कि इथीन जो है इसे पॉलीमर्स के फॉर्म में अरेंज करके पॉलीथीन बना दिया जाता है. अब इसी स्ट्रक्चर को जब आगे कंटिन्यू किया जाता है, इसे पॉलीमराइजेशन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इथिलीन. Ethylene is further broken down as polythene by polymerization. Isomerism, the process of forming isomers. Now, what are isomers? Compounds having same molecular formula but different molecular structure. ऐसे compounds जिनका molecular formula तो same होता है लेकिन molecular structure अलग अलग हो सकता है. For example, these are the isomers जिनके अंदर 2 A के atoms हैं, 3 C के atoms हैं and एक B और D का atom है. तो these are the different structures but molecular formula same रहेगा. Allotropes of carbon. You might be seeing some of these things around me. They are coal, chalk, pencil and diamond. Do you find anything common in them? Yes, all of these things have carbon in them, which means all of these things are made by carbon. ये सारी चीजें कार्बन से बनी हुई हैं. इससे हमें पता चलता है कि कार्बन कितना अलग अलग तरीके से, कितना अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है. It could be available in the hardest form possible. It could be available in the softest form possible. आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कार्बन कैसे अलग अलग तरीकों से अकर करता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग कार्बन की फिजिकल अकरेंस के बारे में बात करेंगे. अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन 2 तरीके से एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट. फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब यह है कि फ्री स्टेट के अंदर कार्बन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कार्बन एलिमेंट फॉर्म करके एग्जिस्ट करेगा. एंड इफ वी टॉक अबाउट कंबाइंड स्टेट, कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएगा. इफ वी सेग्रीगेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, कोल, डायमंड एंड ग्रेफाइट, all of these things are made up of carbon atoms only. Hence इन्हें हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में डालेंगे. और कंपाउंड्स की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं चॉक को, जो कि एक कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, यानी कि कार्बन कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर चॉक बना रहा है. एंड अगर हम हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारे एयर की बात करें, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोफी क्या होता है? एलोट्रोफी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 or more different forms. एलोट्रोपी किसी भी केमिकल एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है इन नेचर. देयर आर सेवरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. Allotropes of carbon are basically categorized into 2 different categories, crystalline and amorphous. Crystalline allotropes वो होते हैं जिनका एक definite shape होता है, यानी कि इन objects को हम by shape identify कर सकते हैं, whereas amorphous are those objects या those compounds which do not have a specific shape, जैसे कि coal, charcoal, lamp black, soot, etc. These are amorphous carbon compounds. Allotropes of carbon, diamond, graphite and fullerene. In all these 3 allotropes, the carbon atoms are joined by strong covalent bond.
इन सारे एलोट्रोप्स में यानी कि ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन में कॉमन ये है कि सारे कार्बन एटम से बने हुए हैं और सब में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इनके अरेंजमेंट अलग तरीके से होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। डायमंड. Diamond is extremely hard and has a high melting point. This is the very reason it is very useful in cutting tools. Diamond एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, इसी वजह से इसे एक कटिंग टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके जो कटिंग एजेस हैं उन्हें ब्रिक्स और कंक्रीट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैवी ड्यूटी ड्रिल्स सच एज दोज यूज्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री आर यूज्ड टू ड्रिल थ्रू रॉक्स। हैवी ड्यूटी ड्रिल्स जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे रॉक्स के अंदर ड्रिल किया जाता है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ डायमंड। अब डायमंड से बनाने के पीछे इनका मकसद क्या होता है? क्योंकि डायमंड एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सब्सटेंस है, तो वो ज्यादा देर तक वैसे का वैसा रह सकता है। डायमंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, यानी कि पानी के अंदर तैरता नहीं है, and it does not conduct electricity. Every atom in a diamond is bonded with its neighbor by 4 strong covalent bonds. हर एक कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच्ड होता है, लीविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड नो आयंस। जैसा कि हम ऑलरेडी इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उन चारों एटम्स की जो जगह है उसे बाय कोवलेंट बॉन्ड पूरा कर दिया जाता है, लीविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि एटम्स को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इन एटम्स को अलग करने के लिए, जो कि इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. Diamond has 3-dimensional structure. Each carbon atom is bounded to 4 other carbon atoms which occupy 4 corners of a tetrahedron. And each of these 4 carbon atoms are bounded to 4 more carbon atoms. Generally, diamond का 3-dimensional structure होता है, जिसमें एक कार्बन एटम बाकी के 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है एक टेट्राहेड्रन की फॉर्मेशन में। बाकी के 4 एटम्स आगे और 4 एटम्स के साथ अटैच्ड होते हैं, एंड इसी पैटर्न में रिपीटेड फॉर्म में इसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डायमंड. प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इट हैज हाई रिलेटिव डेंसिटी, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज ट्रांसपेरेंट टू एक्सरेज, एक्सरेज के थ्रू इसे ट्रांसपेरेंट देखा जा सकता है। इट हैज अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि जो हमारी लाइट रे है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा बेंड दिखाएगी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स, ये हर एक सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है। डायमंड हैज अ हाई डेंसिटी ऑफ 3.51 ड्यू टू 3-dimensional giant structure. इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसके 3-dimensional स्ट्रक्चर की वजह से, एंड इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ. इट इज यूज्ड एज abrasive for sharpening hard tools. It is also used in manufacture of tungsten filaments for electric bulbs. Graphite. Graphite is black, shiny and opaque compound. It is not transparent. It is also very slippery material. ग्रेफाइट एक ब्लैक, शाइनी और ओपेक कार्बन का कंपाउंड है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इट इज वेरी स्लिपरी एंड इट इज यूज्ड इन पेंसिल लेड्स, इसको पेंसिल लेड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ मैनी ल्यूब्रिकेंट्स, फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल चेन ऑयल। इस कंपोनेंट को बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाईसाइकिल्स के अंदर जो चेन में ऑयल लगाया जाता है वो भी ग्रेफाइट से बना हुआ होता है। Graphite is insoluble in water. It has a high melting point and is a good conductor of electricity. Graphite वाटर के अंदर insoluble होता है, इसका melting point बहुत ज्यादा high होता है and it is good conductor of electricity. Structure of graphite. Graphite has a 2-dimensional sheet-like structure. Graphite का जो structure है वो 2-dimensional sheet जैसा होता है. In hexagonal rings, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms. अब जैसा कि हमने डायमंड के अंदर भी डिस्कस किया था
कि एक कार्बन एटम बाकी के 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। Since the layers are stacked over each other, this carbon allotrope can act as a lubricant. अब क्योंकि ये layers एक दूसरे के ऊपर stacked होते हैं, तो इससे हम एक lubricant की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। It also has a metallic luster which helps in conduction of electricity. इसके अंदर से heat और electricity दोनों conduct कराए जा सकते हैं। One of the most important property of graphite is it is used as dry lubricant for machines at high temperature where we cannot use oil. उन मशीन्स के अंदर जिनके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, उनके अंदर हम ग्रेफाइट को एज अ ड्राई ल्यूब्रिकेंट यूज कर सकते हैं, वेयर यूजिंग ऑफ ऑयल इज नॉट दैट सक्सेसफुल। ग्रेफाइट कंटेन्स कार्बन एटम विच शोज हाइब्रिडाइजेशन, हेंस इट बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वो कार्बन एटम है जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जिसकी वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, and for this reason graphite is used as lubricant in machines. ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, इस वजह से इसे एज अ lubricant इस्तेमाल किया जाता है in machines. Where oil cannot be used as lubricant. Fullerene. Fullerene is a newly discovered allotrope of carbon which contains soccer ball shaped structure. Fullerene कार्बन का एक नया न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रोप है जिसका स्ट्रक्चर कुछ सॉकर बॉल की शेप जैसा होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C60 है, यानी कि ये कार्बन के 60 एटम्स को अटैच करके बनता है। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फुलरीन। फुलरीन बीइंग कोवेलेंट and soluble in organic solvents react with group 1 alkali metals and form solids. It also has many nanotechnological applications. Carbon compounds. All those compounds containing carbon are known as carbon compounds. For example, carbon dioxide, methane, ग्लूकोस एंड इथेनोइक एसिड, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ये चारों अलग अलग फॉर्म्स में हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। बट द ओनली थिंग कॉमन बिटवीन देम इज ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर includes carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. ये सारे कंपाउंड्स हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। They have low melting and boiling points and they are not good conductors of heat and electricity. वहीं इसके बिल्कुल ऑपोजिट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि they does not have hydrogen atoms, यानी कि वो सारे कार्बन एटम्स जिनके अंदर CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिसिंग होता है, वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे डज नॉट अकर विद इन लिविंग थिंग्स, दे आर एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी लिविंग थिंग के अंदर मौजूद नहीं होते, इन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज विच आर डिवाइडेड, इन विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड। बट इस चैप्टर के अंदर हम 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, विच आर हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अब इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज एल्केन्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, whereas alkene is formed by double bond and alkynes are formed by triple bond. इनके स्ट्रक्चर्स की तरह इनका केमिकल फॉर्मूला भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इथेन, जो कि 2 कार्बन एटम से बनता है, इथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6, इथीन का C2H4 एंड एल्काइंस यानी कि इथाइन का C2H2।
Hydrocarbons are further classified into two categories, saturated and unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons की कैटेगरी में आते हैं alkanes, whereas unsaturated hydrocarbons की कैटेगरी में alkenes and alkynes. Alkanes जो कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड alkenes and alkynes जो कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेटेड एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आएंगे. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें हम एल्केन्स भी बोलते हैं, व्हेन कार्बन आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड. कार्बन एटम्स जो हैं जब हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, these hydrocarbons are known as alkanes. General formula of alkanes is CnH2n plus 2, where n is number of carbon atoms. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें दे रखे हैं, हम n की जगह पे डाल के CnH2n plus 2 का फॉर्मूला अगर लगा दें तो हमें पता चल जाएगा कि उस एल्केन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा. साइड में दिख रही टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे नंबर ऑफ कार्बन्स के बढ़ने से एक फिक्स पैटर्न में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मीथेन की, CH4 यानी कि कार्बन का एक एटम एंड हाइड्रोजन के 4 एटम. अगर हम बात करें इथेन की, C2H6 यानी कि कार्बन के 2 एटम्स. अब अगर हम इसे इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, CN यानी कि कार्बन एटम्स 2 हैं तो हाइड्रोजन एटम्स H2 into 2 plus 2 यानी कि 6. तो बेसिकली इथेन के अंदर कार्बन एटम्स 2 होते हैं एंड हाइड्रोजन एटम्स 6 होते हैं. सिमिलरली इसी तरीके से ये एल्केन्स एक फिक्स स्ट्रक्चर में बढ़ते हैं. एल्कीन्स, carbon atoms are connected with hydrogen atom with a double bond. Such hydrocarbons are known as alkenes. General formula of alkene is CnH2n, where n is number of carbon compound. जब कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड में जुड़ते हैं, उस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को एल्कीन्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इथीन, जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं और दोनों कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं. अब डबल बॉन्ड से कार्बन एटम्स जुड़े हुए होने के कारण दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड शेयर हो जाते हैं. कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. 2 एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन से 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं. अब दोनों कार्बन एटम्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की और जगह बचती है जिनके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है. कार्बन एटम्स जितने होंगे उसके डबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एल्कीन्स के अंदर. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, प्रोपीन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. ब्यूटीन के अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं तो 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं रेस्पेक्टिवली. एल्काइंस, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद ट्रिपल बॉन्ड. सच हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्काइंस. जब कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, उस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइंस बोला जाता है. जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज CnH2n-2, where n is number of carbon atoms. इस तरीके के हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन एटम आपस में ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हुए होने की वजह से हर एक कार्बन एटम के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ने की वैलेंसी रहती है. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज कुछ इस तरीके से हैं. C2H2 फॉर इथाइन, C3H4 फॉर प्रोपाइन एंड C4H6 फॉर ब्यूटाइन. अब इन्हें हम CnH2n-2 के जनरल फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं. Alkyl group. When we remove one hydrogen atom from an alkane molecule, it is known as alkyl group. जब एक एल्केन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया जाता है तो उसे एल्काइल ग्रुप बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट मीथेन, CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर होता है. अगर हम उसके साथ से एक हाइड्रोजन हटा दें देन इट विल बिकम मिथाइल. जैसे इथेन एंड इथेन, जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स, फॉर एग्जाम्पल इथेन जो 2 कार्बन एटम्स के साथ बनता है, अगर हम इसमें से भी एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दें, इट विल फॉर्म इथाइल. Homologous series. Homologous series is a group of organic compounds which has same functional group, but 2 successive members differ by CH2 group. Homologous series उन organic compounds का ग्रुप होता है
जिनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है, लेकिन उनके सक्सेसिव मेंबर्स के अंदर यानी कि एक से दूसरे कंपाउंड के अंदर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज. All the members of the series can be represented by a same general formula. हर एक मेंबर को एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन्स के लिए CnH2n+2, एल्कीन्स के लिए CnH2n एंड एल्काइंस के लिए CnH2n-2. अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरूर वेरी कर सकता है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला सेम रहता है. एक मेंबर ऑफ द सीरीज दूसरे मेंबर ऑफ द सीरीज से CH2 ग्रुप के हिसाब से अलग होगा. ऑल मेंबर्स ऑफ द सीरीज पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता रहेगा ड्यू टू इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा. फंक्शनल ग्रुप्स. Functional groups refer to the specific atoms bounded in a certain arrangement that give compound a certain physical and chemical properties. Functional group ऐसे कुछ एटम्स हैं जो एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं. सम ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड जिसको हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कोहल जिसे हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एस्टर जिसे COOR से डिनोट किया जाता है. रोल ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फंक्शनल ग्रुप को जब किसी पेरेंट एल्केन के साथ जोड़ देते हैं तो वो उस कंपाउंड को एक अलग पहचान देता है. वही सेम फंक्शनल ग्रुप अगर सिमिलर तरीके के केमिकल रिएक्शंस का पार्ट बने तो सिमिलर तरीके से बिहेव करेगा. द एटम्स ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप आर लिंक्ड टुगेदर एंड द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड. कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, कार्बोनेट्स, दीज आर अ फ्यू कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइड्रोकार्बन्स की. हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस. Alkanes are those hydrocarbons that form single bond. Alkenes and alkynes double and triple bond respectively. Alkanes के एंड में ANE यूज किया जाता है, alkenes के एंड में ENE एंड alkynes के एंड में YNE, जिससे पता चल जाए कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है. नेक्स्ट कैटेगरी इज हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर दो तरीके के कंपाउंड्स आते हैं, एल्काइल हैलिडाइड्स एंड एराइल हैलिडाइड्स. इन आवर कोर्स वी हैव एल्काइल हैलिडाइड्स. कार्बन कंपाउंड के साथ जब हम हाइड्रोजन को हटा के किसी दूसरे एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट बिकम्स पार्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप. फॉर एग्जांपल, एज वी कैन क्लियरली सी CH3 CH2 Cl, एंड में जो हाइड्रोजन था उसके साथ में क्लोरीन लग गया है, सो दिस विल मेक इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन. ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड्स आएंगे. एल्कोहल जिसके एंड में हम OH यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स जिसके एंड में हम CH विद अ डबल बॉन्ड ऑफ O यूज करते हैं, कीटोन्स जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शेयर करते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम COOH फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं. Alcohols are the functional groups that are categorized by presence of OH group. Alcohols are organic compounds in which hydroxyl functional group, that is OH, is bound with an carbon atom. Alcohol ऐसा functional group है जिसे कि OH ग्रुप के प्रेजेंस से कैटेगराइज किया जा सकता है. अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH बॉन्ड अटैच्ड होता है कार्बन एटम के साथ. It is a very important class of molecules which has many scientific, medical and industrial uses. Structure of an alcohol. The structure of an alcohol is similar to that of water as it has bent shape.
अल्कोहल का स्ट्रक्चर काफी हद तक वाटर के स्ट्रक्चर से सिमिलर होता है क्योंकि इसकी शेप भी बेंट होती है। लाइक वाटर, अल्कोहल ऑल्सो कंटेन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। वाटर की तरह ही अल्कोहल के अंदर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप अलाउज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर OH ग्रुप्स। OH ग्रुप का प्रेजेंस हाइड्रोजन को अलाउ करता है दूसरे OH ग्रुप्स के साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करने में। यूजेस ऑफ अल्कोहल। Alcohol have many uses in our everyday world. They are found in beverages, antifreeze, antiseptics, fuels, etc. They can be used as preservatives for specimen in science. And alcohols are able to participate in many reactions. क्योंकि alcohols काफी सारे reactions का पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए इन्हें as a specimen इस्तेमाल किया जाता है in experiments. Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are the classes of organic compounds that contain a carbonyl bond. Carbonyl bond कौन सा होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, that is known as carbonyl bond. अब एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंस क्या होता है? एल्डिहाइड के केस में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है और एक तरफ किसी एल्काइल ग्रुप के साथ। वेयर एज कीटोन के अंदर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड एक तरफ, दोनों तरफ किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है। कीटोन्स, व्हेन अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप is placed within a molecule, it is known as a ketone. Ketones are polar and are able to interact with other compounds through a hydrogen bonding. Ketones are often more volatile than alcohols and carboxylic acids. Aldehydes. An aldehyde is an organic compound that contains carbonyl group with the central carbon bonded to hydrogen and R group. Aldehyde एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोनिल ग्रुप को बिलोंग करता है, जहां कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ और R ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है। Aldehydes कीटोन से इसलिए अलग हैं बिकॉज कार्बन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ कार्बन स्केलेटन, वेयर एज इन कीटोन्स इट इज प्लेस्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। Carboxylic acid. Carboxylic acids are organic acids that contain a carbon atom that participates in both hydroxyl and a carbonyl functional group. Carboxyl ग्रुप के अंदर COOH के फॉर्मेशन में ये फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं एंड कार्बोनिल ग्रुप के अंदर C डबल बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन with a hydroxyl group attached with a hydrogen. Now both of these carbonyl and hydroxyl groups are attached with a single carbon atom and it leads to the formation of carboxylic acid. Esters. Esters are the functional group produced from the condensation of an alcohol with a carboxylic acid. Esters are the derivatives of carboxylic acid where hydroxyl, that is OH group, has been replaced by an alkyl, that is OR group. They are commonly synthesized from the condensation of carboxylic acid with an alcohol. जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ कंडेंस करवाते हैं तब हमें मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख पा रहे होंगे इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, जब हम उसे इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कंडेंसेशन के बाद इथाइल इथेनोएट फॉर्म होगा जो कि विच इज नोन एज एस्टर। यूजेस ऑफ एस्टर्स. Esters are ubiquitous naturally occurring fats and oils. They are typically fragrant. Esters फ्रेग्रेंट होते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारे परफ्यूम्स और ऑयल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीमराइज्ड एस्टर्स also known as polyesters are important plastics. Halides also known as haloalkanes, an organic compound containing at least one carbon halogen bond, that is CX. X की जगह हम किसी भी हेलोजन को रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब हाइड्रोजन इन सब से रिप्लेस कर दिया जाता है देन इट इज नोन एज अ हेलोएल्केन और हेलाइड। Properties and some uses of haloalkanes. They are often used as fire resistant solvents, refrigerants and also used in pharmaceuticals. Halogenoalkanes are similar to alkanes but one or more hydrogen atoms are replaced by a halogen. एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स जब एक हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं देन उसे हेलोजेनोएल्केन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम साथ के स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दिए गए हैं 3 क्लोरीन एटम्स के साथ, सो दिस इज नाउ नोन एज ट्राइक्लोरोमीथेन।
and it is a haloalkane. Halogenoalkanes can contain more than one type of halogens as well. For example, CFCs, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी बोलते हैं. इस केस में हाइड्रोजन एटम्स ना सिर्फ क्लोरीन से रिप्लेस होते हैं, बट दे आर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय nomenclature of carbon compounds. Hello everyone, my name is Rohit Sharma and these are Abhinav and Karthik. Every individual is unique in its own terms and hence they are given names to create differentiation among them. हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अलग होता है, यूनिक होता है. उनकी यूनिकनेस की वजह से उनके अंदर उनके बीच डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं. नाउ सेम थिंग इज डन विद कार्बन्स. दो all the carbon atoms belong to a same parent that is carbon, but उनके functions, उनके characteristics के हिसाब से they are given different names. This process of naming carbon compounds is known as nomenclature. It is a method of naming organic chemical compounds. हर chemical compound को उनके structural formula और उनके functions के base पे एक नाम दिया जाता है. As we all know, in our Indian culture, there is a ritual named Namkaran, in which a newborn baby is given name by the priests. Similarly, carbon compounds are given the name after they come into existence. जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर के अंदर नामकरण किया जाता है जैसे ही कोई नया इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आता है, उसी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स जैसे ही एग्जिस्टेंस में आते हैं उनका नाम रखा जाता है. अब ये काम कौन करता है? IUPAC, which is also known as International Union of Pure and Applied Chemistry. What is IUPAC? IUPAC is an international organization which is responsible for standardizing nomenclature of organic chemistry and other sciences. IUPAC एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है इन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन केमिस्ट्री. रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर. नाउ IUPAC ने कुछ सेट ऑफ रूल्स तैयार किए हैं एक रूल बुक के अंदर विच इंक्लूड्स द डिफरेंट गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू विच वी नेम डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स. नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल ये है कि किसी भी कंपाउंड के नाम को हम डिफरेंशिएट करते हैं उसके प्रीफिक्स और उसके सफिक्स के हिसाब से. Parent hydrocarbon, the main straight chain of hydrocarbon depending on the number of carbon atoms in that chain. Parent hydrocarbon is always considered to be the prefix. Parent hydrocarbon का कैसे पता चल सकता है? Maximum carbon atoms in a series can be considered as parent carbons. For example, जैसा हम ये कार्बन सीरीज देख पा रहे हैं, यहां एक सीरीज के अंदर 10 कार्बन एटम्स हैं, सो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन. अगर हम दूसरी चेन की बात करें जो कि लिंक्ड है विद अ साइड चेन, इस केस में स्ट्रेट लाइन में अगर हम देखें तो 8 कार्बन एटम्स हैं, वेयर एज जहां पे हमारी साइड चेन शुरू हो रही है अगर हम वहां से कंसिडर करें सो देयर आर 7 कार्बन एटम्स. द चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन एंड दैट इज C8. And the chain attached to it will be considered as side chain. Now, as we clearly observed, parent hydrocarbon is used as prefix and functional groups are used as suffix. Now let's discuss a few of them with some examples. For example, as we can clearly see a carbon chain here, number of carbon atoms are 4. So we will use but for it. And all of the carbon atoms possess single bond, so we will use A and E for it. If we combine both of them, it is butane. As we can clearly see, there are two different components attached to the carbon chain. One is chlorine and one is OH, which is denoted as alcohol. One of them is substituent and other is functional group. Chlorine here is substituent and OH is functional group. Substituents are always part of prefix whereas functional groups are considered to be part of suffix. So carbon compound will be butane, E will be replaced by OL and it will be butanol. So this will be chlorobutanol. अब आप अगर इस कंपाउंड को क्लियरली देखें तो इसके नाम को हमने 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है. सबसे पहला सेक्शन क्लोरो विच इंक्लूड्स सब्स्टिट्यूएंट,
उसके बाद ब्यूट विच इज नंबर ऑफ कार्बन्स, आफ्टर दैट नेचर ऑफ बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उसके हिसाब से, एंड एट द एंड एज सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स। बेसिकली अगर हम पूरे कार्बन कंपाउंड के नेम को 3 मेन हिस्सों में बांटे तो इट विल बी प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। इफ वी टॉक अबाउट दिस ब्रांच्ड चेन, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6, prefix, word root, suffix. The same pattern will be followed. Chloro will be our prefix. Now, since it is a cyclic compound, तो इसके नाम के अंदर cyclo आ जाएगा. Hex, because there are 6 number of carbon atoms. Single bond, so ANE, and suffix will be OH, which is used for alcohol. So, the name of this carbon compound will be chlorocyclohexanol. Now as you can clearly see, we have mentioned the number of the carbon chain with which chlorine is attached. Chlorine जिस कार्बन के साथ attached है उसका नंबर भी हमने mention किया है. Then it will become 4-chlorocyclohexanol. Hex जो word root है, it includes number of carbon atoms. Ane, which is primary suffix, single, double and triple bond respectively. OL, which is secondary suffix जो कि शो करता है functional groups को. Cyclo, which is primary prefix जो कि हमें ये बताता है कि वो cyclic है या non-cyclic है. जो structure of carbon compound है वो cyclic है या non-cyclic है. अगर it is open, then we use nothing for it. Secondary suffix. Secondary suffix हमें बताता है कि उसके साथ कोई substituent या side chain attached है या नहीं. Let's consider this example. इस केस में 4 कार्बन एटम्स हैं, सो वी यूज ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है, देन वी यूज ANE. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ब्यूटेन. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट्स की. नॉमेनक्लेचर में कार्बन कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा ये सबसे पहले डिपेंड करता है उसके वर्ड रूट पे. वर्ड रूट का सिंपल सा मतलब है इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट प्राइमरी सफिक्स, एज वी ऑल नो, carbon compounds with single bond are considered to be ane, carbon compounds with double bond are considered to be ene, and triple bond ine respectively. Secondary suffix यानी कि functional groups. Functional groups को अलग अलग तरीके से डिनोट किया जाता है. अगर एंड में COOH हो then it is carboxylic acid. For example, जैसे ये कार्बन चेन जो हमारे पास में है, it is propane. Why propane? Because there are 3 number of carbon atoms attached to it. Functional group के अंदर आने वाला कार्बन एटम भी इसी कंपाउंड का माना जाएगा. Hence, we will include the carbon of carboxylic acid as well. Since it is a carboxylic acid, we will use oic acid in the end. So this structure is of propanoic acid. Next functional group is aldehyde, which is represented by Al. As we can clearly see, CHO नाम का एक functional group attach किया गया है, which denotes aldehyde. Aldehydes को Al के साथ denote किया जाता है, and since there are 3 number of carbon atoms, so it will be propanol. Ketone, जिसे हम last में ONE से denote करते हैं. For example, this is the structure of carbon atoms. Ketone एक ऐसा functional group है जो कार्बन चेन के मिडिल में अटैच होता है. अब इस केस में हमें सबसे पहले उस तरफ से चेन को शुरू करना पड़ता है जहां से ये फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक हो. सो वी विल बी स्टार्टिंग काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम द राइट साइड. यहां पे कीटोन जो है ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है. सो द कार्बन कंपाउंड विल बी, एंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, सो इट विल बी pent2-one. नेक्स्ट इज OH, which is denoted as alcohol, जिसे हम OL से डिनोट करते हैं. Then it is esters. Esters जिन्हें हम COOR से डिनोट करते हैं. Now what is R here? R is alkyl group. Alkyl group जब हम किसी भी alkanes के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल. अगर आप क्लियरली देख पाए तो यहां एक हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दिया जाता है देन एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड.
एस्टर्स जो हैं ये एंड में एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं, COO R की जगह पे एक एल्काइल अटैच हो जाता है, जैसे इस केस में मिथाइल, देन एस्टर इज फॉर्म्ड। सिंस एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड विद एस्टर्स, तो एल्काइल का नाम एंड आफ्टर दैट एल्केनोएट इज यूज्ड टू write the name of these carbon compounds. For example, this is the structure of methyl butanoate. Let's see another example of ethyl ethanoate in the case of esters. Secondary prefix list. Secondary prefix list में दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स. Now let's discuss a few rules of nomenclature. Nomenclature के रूल्स को मेनली हम तीन कैटेगरीज में बांटते हैं. सबसे पहला मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग एंड देन नेमिंग. सबसे पहले बात करते हैं मेन चेन सिलेक्शन की. सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल. मेन चेन वही चेन होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस देयर आर 4 कार्बन्स अटैच्ड इन अ सीक्वेंस and in second case there are 5 carbons attached in a sequence. In this case 5 carbons will be considered as main chain because it is the longest chain. और रही बात CH3 की, it will be considered as a side chain. In this kind of structure, number of carbon atoms in a series, most number of carbon atoms in case 1 are 5 and in case 2 7. Next question that comes through our mind is how to select the main chain in case of double bond, triple bond and functional group. For example, in this structure एक सीक्वेंस के अंदर लगातार 7 कार्बन की चेन बन रही है. कायदे से तो मेन चेन इसे ही कहना चाहिए, लेकिन मेन चेन विल बी दिस. रीजन बिहाइंड दैट इज इसके अंदर डबल बॉन्ड है. जब भी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक साथ हों तो ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी जाती है. सो दिस विल बी आवर मेन चेन. सिंगल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप्स में से ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी. नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इस केस में हमारा फंक्शनल ग्रुप इज राइट देयर इन बिटवीन, तो उस केस में हम किस कार्बन चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे? इन दिस केस अ स्ट्रेट चेन हैज 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन अगर हम साइड चेन को भी साथ में कंसिडरेशन में लें तो इट ऑल्सो हैज 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो दोनों केस में अगर 6 कार्बन एटम्स हैं, यानी कि सिमिलर कार्बन एटम्स हैं, अब हम किस चेन को मेन चेन कंसिडर करेंगे? इन सच केसेस वी विल कंसिडर द काउंट ऑफ नंबर ऑफ साइड चेन्स, यानी कि जिस कार्बन चेन के साथ नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा अटैच्ड होंगी उससे हम मेन चेन कंसिडर करेंगे. In this case, case number 1, that is with 2 side chains, will be considered as main chain. अब हम लोग बात करते हैं नंबरिंग के बारे में. नंबरिंग में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है लोएस्ट लोकेंट रूल. लोकेंट वर्ड का सीधा सा मतलब है लोकेशन, यानी कि इस कार्बन चेन में हम चाहेंगे कि हमारे डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उन्हें सबसे लोएस्ट लोकेशन मिले. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल. जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस केस में साइड चेन पे CH3 अटैच्ड है. इन दिस केस वी नीड दैट द CH3 मस्ट हैव लोएस्ट लोकेंट. वी विल स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम आवर लेफ्ट साइड ताकि हमारे CH3 को लोएस्ट लोकेंट मिले. नाउ लेट्स कंसिडर दिस एग्जाम्पल जहां हमारे पास 2 अलग अलग साइड चेन्स अटैच्ड हैं अलग अलग पोजिशन पे. इस केस में लोएस्ट लोकेंट रूल हमें हर एक साइड चेन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा. 2 साइड चेन्स एक कार्बन के साथ अटैच्ड हैं. इन दिस केस वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि सबसे पहले इफ वी स्टार्ट काउंटिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहला साइड चेन नंबर 2 पे आ रहा है एंड उसके बाद अगला नंबर 5 पे आ रहा है. एंड इफ वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सबसे पहला कार्बन चेन नंबर 2 पे आ रहा है, उसके बाद नंबर 5 पे आ रहा है. इन दिस केस हमें क्या करना है? वी नीड टू काउंट द सीक्वेंस ऑफ दीज नंबर्स, यानी कि पहले केस में 2, दूसरे केस में 2, अगले केस में 2, दूसरे केस में 5. इन दिस केस द शॉर्टेस्ट वन विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जो लेफ्ट टू राइट वाला नंबरिंग है दैट विल बी कंसिडर्ड इन दिस केस.
So in this case, the main chain will be when we'll count from left to right. In this case, जहां हमारे पास डबल बॉन्ड भी है और एक साइड चेन भी है, डबल बॉन्ड को साइड चेन से पहले प्रेफर किया जाएगा. सो लोएस्ट लोकेंट रूल मस्ट बी गिवन टू डबल बॉन्ड. हमारा डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है एंड साइड चेन इज ऑन नंबर 4. सो नंबर 2 will be considered to be lowest locant. In the case of triple bonds and double bonds are given more preference than that of triple bond. Let's see another example. In this case, we've got a double bond and a triple bond. Now, अगर हम इसे right to left numbering करते हैं तो double bond आ रहा है नंबर 2 पे and triple bond आ रहा है नंबर 4 पे. Whereas अगर हम इसे लेफ्ट टू राइट लेबल करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है नंबर 2 पे एंड डबल बॉन्ड आ रहा है नंबर 4 पे. बेसिकली दोनों केसेस में हमारे लोकेंट्स जो हैं वो एकदम सिमिलर हैं. इस केस को बोला जाता है इक्विवेलेंट नंबरिंग, यानी कि इस केस में हम किसी भी तरीके से इसको मेन चेन कंसिडर कर सकते हैं. द मेन चेन विल बी सेम. इन सच केसेस, एज वी ऑलरेडी नो, डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाएगा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा. सो लोएस्ट लोकेंट विल बी गिवन टू डबल बॉन्ड, यानी कि लोकेंट्स व्हेन वी काउंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी कंसिडर्ड. लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल जहां हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और एक फंक्शनल ग्रुप है. इन सच केसेस फंक्शनल ग्रुप विल बी प्रेफर्ड मोर देन डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट रूल दिया जाएगा. सो इन दिस केस वी विल काउंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Lowest locant will be given to our functional group, that is alcohol here, and it will be 2. Next important rule is of chain terminating functional group. There are a few functional groups like carboxylic acid जो जहां पे अटैच होते हैं उसके आगे उस चेन को टर्मिनेट कर देते हैं. जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, अगर हम नॉर्मल रूल्स के हिसाब से चलें तो हमारा मेन चेन ये होना चाहिए, लेकिन in case of carboxylic acid the main chain will be this and after that the chain is terminated. So these functional groups are known as chain terminating functional groups. Rules of nomenclature, main chain selection और नंबरिंग के बाद अब हम लोग बात करते हैं नेमिंग के बारे में. नेमिंग में सबसे पहला रूल है हमारा नंबर ऑफ कार्बन्स इन द एटम. जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उस हिसाब से उसका नेम हम डिराइव करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन द अबव सिचुएशन देयर आर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स along with 2 side chains attached to it which are methyl and ethyl. अब इस केस में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, यानी कि M और E में से सबसे पहले E आता है. सो इस कार्बन कंपाउंड का नाम इथाइल होगा. And the position of ethyl is 3 ethyl. After that we'll write 2 methyl. Since there are 6 number of carbons and that too with a single bond, it will be considered as hexane. तो इस कंपाउंड का नाम होगा 3 ethyl 2 methyl hexane. In this example, जहां सेकेंड नंबर पे दोनों तरफ सेम साइड चेन है, उस केस में हम क्या करेंगे? अब इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 methyl ब्यूटेन, राइट? रॉन्ग. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां साइड चेन्स सेम नंबर पे अटैच्ड हैं तो हम उसे डाई मिथाइल लिखेंगे. इट विल बी रिटन एज डाई. इफ 2 साइड चेन्स आर अटैच्ड विद द मेन चेन एट द सेम पोजिशन, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा. इन दिस केस वी विल राइट डाई मिथाइल. And since there are 4 number of carbon atoms, dimethyl butane. In this case, 2 side chains are attached with the main chain. One of them is methyl and another one is ethyl. So in this case, 3 methyl and 4 ethyl hexane. So in this case, as we already discussed, ethyl E पहले आएगा, methyl M बाद में आएगा on their position. And after that hexane. Now let's talk about multiple bonds. Multiple bonds हम single bond को single dash के साथ donate करते हैं. That is multiple bonds, that is alkane, alkene and alkyne, which are shown as single bond, double bond and triple bond respectively.
जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में जहां हमारे पास सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड साथ में है, वी विल कंसिडर द ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट। सिंस देयर आर 4 कार्बन एटम्स, तो ब्यूट एंड सेकेंड कार्बन एटम पे ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 2 आयन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कार्बन। Chemical properties of carbon. Carbon is a fascinating element. It is known to form almost 10 million different compounds that are organic in nature. कार्बन एक बहुत फैसिनेटिंग एलिमेंट है। ये 10 मिलियन से भी ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनाने के लिए जाना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हम या तो ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन। जब कोई भी कार्बन कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, उसे केमिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। There are 4 different types of chemical properties: combustion, oxidation, addition and substitution. Combustion जिसका मतलब होता है burning, oxidation जिसका मतलब होता है reaction with oxygen, जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन में एडिशन कर देते हैं एटम्स का, then it is known as addition. Substitution, when we substitute any atom or a functional group with some other atom. Now let's discuss all of them one by one. Combustion. Combustion reaction. Combustion reaction occurs when a substance reacts quickly with oxygen. For example, charcoal combining with oxygen. जब कोई substance ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न होता है, that is known as combustion. The reaction typically gives off heat and light as well. ये जनरली हर तरीके के फ्यूल के साथ बहुत कॉमन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी बर्न वुड in the presence of air, it causes combustion. Combustion of hydrocarbon. जो भी फ्यूल बर्न किए जाते हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है, कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के बनते हैं। मीथेन जनरली बायोगैस प्लांट्स के अंदर बनती है, जिसे हम इस्तेमाल ले सकते हैं अपने किचन के अंदर। इफ वी क्लियरली सी आर गैस बर्नर, उसका जो फ्लेम होता है दैट इज अ क्लियर ब्लू फ्लेम। तो बेसिकली मीथेन बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम। लेकिन अगर हम बात करें वुड की, वुड बर्न्स विद अ येलो फ्लेम। तो ये दोनों तरीके के कंबस्टन के अंदर फर्क है। मीथेन इज अ फ्यूल विच शोज कंप्लीट कंबस्टन, हेंस इट हैज ब्लू फ्लेम, वेयर एज वुड के केस में कंबस्टन इनकम्प्लीट होता है, इसी वजह से उसका जो फ्लेम है दैट इज येलो। Hydrocarbons are of 2 types: saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, whereas unsaturated hydrocarbon जिनके अंदर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। कंबस्टन के केस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर एग्जांपल मीथेन के साथ क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन and it forms 2 water molecules and a carbon dioxide. In reaction with oxygen, the carbon and hydrogen bonds are broken down and eventually the double and triple bond of carbon is broken down. Oxidation. Oxidation can be defined as the addition of oxygen to a molecule or the removal of hydrogen from a molecule. ऑक्सीडेशन का सिंपल सा मतलब है या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनोइक एसिड फ्रॉम मिथेनॉल। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मिथेनॉल के स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, वेयर एज इन केस ऑफ मिथेनोइक एसिड 2 oxygens are attached with 1 carbon. Now this reaction in which oxygen is added is known as oxidation. कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मिथेनॉल का ऑक्सीडेशन, alkyne potassium permanganate is the oxidizing agent is responsible for oxidation of methanol. Another example will be ethanol
becoming ethanoic acid. Ethanol, as we can see, carbon is attached with oxygen, and in ethanoic acid, carbon is attached with oxygen, and in ethanoic acid, carbon is attached with oxygen at both the ends. Hence, oxygen is added in this molecule. Acidified potassium dichromate is the oxidizing agent responsible for oxygen in ethanoic acid. Hence, methanol being converted into methanoic acid and ethanol being converted into ethanoic acid by oxidizing agents alkyne potassium permanganate and acidified potassium dichromate respectively forms methanoic acid and ethanoic acid. Both these reactions are known as oxidation since oxygen is attached to the carbon molecule. Alkyne potassium permanganate and acidified potassium dichromate are the oxidizing agents respectively. Addition reaction. Unsaturated hydrocarbons react with hydrogen in the presence of some catalyst to give saturated hydrocarbon, and this reaction is known as addition reaction. जब भी unsaturated hydrocarbon को हम किसी catalyst के साथ react करवाते हैं और वो saturated hydrocarbon बन जाते हैं, this reaction is known as addition reaction. Addition reaction is observed only for those compounds that have unsaturation, that is, the compounds that contain multiple bonds, double bond and triple bond respectively. For example, methane and ethene. Methane is a saturated compound, whereas ethene is an unsaturated compound. In this reaction, we will try to replace chlorine with hydrogen atoms in methane and ethene respectively. For example, ethene, which is a carbon compound which has double bond, when reacts with chlorine, forms dichloroethane, which is a saturated compound. Hence, hydrogen present in ethene will be substituted by chlorine molecule and double bond is broken down into a single. In case of methane, when methane reacts with chlorine in the presence of sunlight, it forms dichloromethane, chloroform, chloromethane, hydrochloric acid and carbon tetrachloride. Different forms of carbon and hydrogen bonds are broken down and they are replaced by chlorine respectively. In case of chloromethane, one hydrogen atom is replaced with chlorine and hydrochloric acid is released as a byproduct. In case of dichloromethane, two hydrogen carbons are replaced with chlorine, whereas chloroform is formed as a byproduct and along with carbon tetrachloride. As we can clearly see, ethene that had double bond after reacting with chlorine has formed a single bond, and in case of methane, it forms chloromethane and hydrochloric acid. Hydrogenation reaction, that is vegetable oil. वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने में भी इसी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है. वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, उसे हम रिएक्ट करवाते हैं निकल कैटलिस्ट के साथ टू फॉर्म वेजिटेबल घी. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एक ग्रुप ऑफ एटम या फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम. For example, methane when reacts with chlorine forms chloromethane and hydrochloric acid. In this case, hydrogen is substituted with chlorine. And in case of ethane, when ethane reacts with chlorine, it forms chloroethane and hydrochloric acid. So both of these reactions are examples of substitution reaction because hydrogen atom को replace कर दिया जाता है chlorine atom के साथ. सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स. अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की. इथेनॉल. इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल. द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज आल्सो इथाइल अल्कोहल. इथेनॉल सेकंड मेंबर होता है अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का. इसे इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है. अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें, इट विल बी C2H5 and OH. Properties of ethanol. Physical properties of ethanol. Ethanol is a colorless liquid having a pleasant smell and a burning taste.
इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, नियरली 78 डिग्री सेल्सियस और 351 केल्विन. Ethanol is a covalent compound like any other acid. It is neutral compound because it does not contain any hydrogen ions. Ethanol एक covalent compound होता है और ये बाकी सारे acids की तरह neutral होता है. Chemical properties of ethanol. Chemical properties के अंदर सबसे पहले combustion. Ethanol is highly inflammable liquid. It catches fire easily. इथेनॉल बहुत ही इन्फ्लेमेबल लिक्विड होता है और ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है. इथेनॉल व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. इथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन सिंपली मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन. व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद एल्केलाइन potassium permanganate or acidified potassium dichromate, it is oxidized to form ethanoic acid. जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब भी हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये इथेनोइक एसिड फॉर्म करता है. डिहाइड्रेशन. इथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, at 120 degrees Celsius, it forms diethyl ether. This reaction is known as dehydration reaction. जब इथेनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है at 120 degrees Celsius, it forms diethyl ether and water is released as byproduct. Reaction of ethanol with sodium. इथेनॉल को जब हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब क्या होता है? सोडियम एंड इथेनॉल टुगेदर फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन. जब हम सोडियम और इथेनॉल को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म करता है. OH at the end of alcohol is replaced by Na. Hydrogen that is present at the end of ethanol is replaced by sodium. Uses of ethanol. Ethanol is used in making medicines, in laboratories, इन व्हीकल्स, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम कंज्यूम करते हैं उनके अंदर. इट ऑल्सो हैज सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट इन केमिकल रिएक्शंस एंड एज अ बेस इन मैनी मेडिसिन्स एज वेल. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीडोट अगेंस्ट हार्मफुल एल्कोहल्स लाइक मिथेनॉल. इन लैबोरेटरीज इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, whereas it is also used in sterilization, drinks and beverages, and it is also used as fuel. Ethanoic acid is the second member of homologous series of carboxylic acids. The common name of ethanoic acid is acetic acid. Dilute solution of ethanoic acid in water is called vinegar. It contains 5 to 8% ethanoic acid. Vinegar is widely used as a preservative in pickles. Ethanoic acid कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होमोलोगस सीरीज का दूसरा मेंबर होता है. इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज्ड एज एसिटिक एसिड. Physical properties of ethanoic acid are: ethanoic acid is a colorless liquid having taste and smell like a vinegar. Boiling point of ethanoic acid is 108 degrees. In kelvins it is 391. Chemical properties of ethanoic acid. Action on litmus. Ethanoic acid is acidic in nature. Ethanoic acid turns blue litmus solution to red. Reactions with carbonates. Ethanoic acid react with sodium carbonate to form sodium ethanoate and carbon dioxide. Ethanoic acid सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है सोडियम इथेनोएट बनाने के लिए एंड रिलीज करता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Reactions with sodium hydrogen carbonate. Ethanoic acid reacts with sodium hydrogen carbonate to evolve brisk efflorescence of carbon dioxide gas. इथेनोइक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथेनोएट फॉर्म करता है along with hydrogen and brisk efflorescence of carbon dioxide gas. Reactions of ethanoic acid. Esterification and halogenation. Esterification reaction. When an alcohol reacts with carboxylic acid, it forms ester and water. For example, alcohol when reacts with
carboxylic acid, it forms ester and water. This reaction is known as esterification reaction. Esters are used in synthetic flavors, perfumes, cosmetics, etc. अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अल्कोहल से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ऑब्टेन करके वाटर अलग कर दिया जाता है एंड इथेनॉल इथेनोइक एसिड टुगेदर फॉर्म्स इथाइल इथेनोएट which is the ester. Hydrolysis of esters with water. एस्टर्स और एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि उसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दें वी कैन ऑब्टेन अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड. इथाइल इथेनोएट if reacts with sodium hydroxide it will form sodium ethanoate and ethanol. Applications of acetic acid. Acetic acid is used in food industry as food preservatives, and it is also used in medical field for treatment of infections and disorders. Soaps and detergents. Soap is a long carbon chain with carboxylic acid attached at one end. सोप बेसिकली कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है जिसके एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच्ड होता है. इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या तो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट अटैच्ड होते हैं एट वन एंड. सोडियम स्टेरेट is an example of a soap. As we can clearly see, it's a long carbon chain. Last में carboxylic acid के साथ sodium as a salt is attached. हर एक soap molecule basically दो main structures में divided होता है, hydrophobic and hydrophilic. Head of the soap molecule is considered to be hydrophilic and the tail it is considered to be hydrophobic. Manufacture of soap. Soap is made by heating animal fat or vegetable oil with a concentrated sodium hydroxide solution, that is caustic soda solution. The fats or oils react with sodium hydroxide to form soap or glycerol. Soaps का formation vegetable oil को concentrated hydroxide solution के साथ react करवाते हैं. Then soap is formed along with glycerol. Saponification, the process of making soap by hydrolysis of fats and oils with alkalis is known as saponification. जब हम soap बनाते हैं hydrolysis करके fats and oils का, that process is known as saponification. Preparation of soap. Animal fat or vegetable oil acts as an ester, whereas sodium hydroxide and potassium hydroxide act as bases. All we need to do is take 30 ml of vegetable oil in a beaker, then add 60 ml 20% of hydroxide solution to it. This mixture is heated slowly till it boils. After the mixture boils for 5 minutes to 10 minutes, add 5 gram of sodium chloride in order to separate soap from solution. And the creamy layer floating on the top is commercial preparation of soap. अगर हम सोप को कमर्शियली बनाने की कोशिश करें तो it involves the mixture of oils and fats with the solution of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक बहुत बड़े आयरन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है जहां पे सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स जो हैं they forms soap and glycerol. Once the soap is formed, it is separated with the help of sodium chloride. एक बार सोप बन जाता है उसे सोडियम क्लोराइड के मदद से अलग कर लिया जाता है. Soap is lighter and it floats like a cream on the solution. Then it is separated from the solution, suitable chemicals and odors are added into it, and then it is cut into desired shape and it is packed. Glycerol जो कि हमें dissolved state में मिलता है, इसे हम distillation के process से अलग कर सकते हैं, which is also used to prepare different types of soaps. Structure of a soap molecule. एक soap molecule का structure कुछ इस तरीके का दिखता है. एक बहुत लंबी कार्बन चेन जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिल टर्मिनल अटैच्ड है विद सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स अटैच्ड टू इट. हर एक सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रोफिलिक एंड वो एंड होता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, इट इज एन आयनिक एंड. वेयर एज हाइड्रोफोबिक एंड वो होता है जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ डिसॉल्व होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ डिसॉल्व होता है. सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है वेयर हाइड्रोफिलिक एंड इज रिप्रेजेंटेड एज हेड एंड हाइड्रोफोबिक एंड इज रिप्रेजेंटेड एज टेल.
This is considered to be our hydrophilic end. Hydra means water and philus means loving, यानी कि ये water loving end of soap molecule होता है, whereas this is hydrophobic end. Hydra means water and phobia means fear, यानी कि ये water fearing end होता है. Miceles. When soap is at the surface of water, soap molecules form a cluster-like structure in which hydrophobic tails are at the interior and hydrophilic tails are at the surface of the cluster. This formation is known as miceles. जब भी सोप वाटर के सरफेस के ऊपर होता है तो सोप मॉलिक्यूल्स एक क्लस्टर जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसमें अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं जो कि बाहर की तरफ अटैच्ड होती हैं हाइड्रोफिलिक एंड के साथ, एंड दे आर नोन एज माइसिलीज. स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलीज. माइसिलीज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक एंड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. Properties of miceles. A micelle as a soap is able to clean. The miceles stay in solution as a colloid. Soap miceles can disperse light. The miceles of soap help to dissolve oily scum in water. Miceles क्लीनिंग के प्रोसेस में काम आती हैं. सोप माइसिलीज लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं और ऑयली डर्ट को स्कम के फॉर्म में वाटर के थ्रू रिलीज किया जा सकता है. डिटर्जेंट्स. डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. डिटर्जेंट्स अमोनियम और सल्फोनेट के सॉल्ट्स हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बड़े चेन्स के फॉर्म में अटैच्ड होते हैं. The charged end of these compounds do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium ions in hard water. Thus, they remain effective in hard water. अब detergents hard water के अंदर काफ़ी effective होते हैं. Reason behind that is इनके जो charged ends हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ आयंस नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते. Uses of detergents. Detergents are used to make shampoos and cleaning products. Now, the next question that comes in our mind is, what is better, soap or a detergent? Soap और detergents में से better क्या है? सोप मेटल सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैटी एसिड्स के बड़े चेन्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स. ये हार्ड वाटर के अंदर इतने इफेक्टिव नहीं हैं बिकॉज दे फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन एक्सेट्रा. Whereas डिटर्जेंट्स वो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं जो लंबे हाइड्रोकार्बन के चेन्स के फॉर्म में होते हैं, which are attached with alkyl sulfates or benzene sulfonates. They are prepared from hydrocarbons of petroleum or coal. अब डिटर्जेंट्स और सोप्स के अंदर सिर्फ इतना फर्क है कि डिटर्जेंट्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म नहीं करते. They do not form insoluble precipitates in hard water. Since they are effective in soft, hard or salty water as well, we can say that detergents are better than soaps. Soaps and detergents के बीच में अगर हम एक basis of comparison लेके देखें, soaps contain sodium carboxylic. Soaps belong to sodium carboxylate groups, whereas detergents belong to सोडियम सल्फोनेट ग्रुप्स. सोप्स हार्ड वाटर के अंदर वॉशिंग में सूटेबल नहीं होते हैं, whereas डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में वॉशिंग के लिए सूटेबल. दे हैव रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन. इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो वीक होता है, whereas डिटर्जेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन. सोप्स बायोडिग्रेडेबल हैं, whereas डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल.